انگریز بہت مانتا ہے حسد کو، جادو جنات کو بہت جانتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے۔ آسمانی نظام ہے اس کا علاج حسد، زمینی نظام میں حسد کا علاج نہیں ہے۔ کیوں؟ یاد رکھیے گا، حسد ایک ایسا راز ہے جو صرف سینے میں ہوتا ہے۔ میٹھے بول سے بندہ بول رہا ہے، ہنس ہنس کے باتیں کر رہا ہے، گلے مل رہا ہے، جھک کے ہاتھ چوم رہا ہے، پاؤں چوم رہا ہے، ہاتھ چوم رہا ہے، پاؤں چوم رہا ہے، اور بندہ کہتا ہے کہ میرا اس سے بڑا کوئی دوست ہے ہی نہیں، پر دل میں کینہ اور حسد ہوتا ہے اور موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، موقع کی تلاش میں۔ نواب بہاول خان عباسی رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ حج پہ گئے، قافلہ ساتھ گیا، قافلہ، اور ایک خادمہ تھی پرانی خاندانی، اس کے اندر حسد تھا، اس نے آخر تھوڑی سی چیز دی اور وہیں جھٹکا لگا، اور زہر حلال ایسا سخت زہر تھا، اور وہ بندہ وہیں حج کے بعد جوانی 30-32 سال کی عمر میں ختم ہو گئے۔ پھر ان کے خاندان میں ریت چلی کہ کبھی بھی کسی کے ہاتھ سے چیز نہیں کھاتے تھے، آخری نواب تک جو 1966 میں فوت ہوئے، آخری نواب تک نہیں کھاتے تھے، ایک برتن ہوتے تھے ان میں چیز رکھتے تھے، اور اگر اس میں کھانے میں زہر ہوتا تھا برتن خود بہت ٹوٹ جاتا تھا، پھٹ جاتا تھا۔ حسد ہماری زندگی میں چلے گا، اور اس کی حفاظت یا حافظ ہو یا سلام، 11 بار اس کی حفاظت یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام، اس کی حفاظت اللہ حافظی، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ شاہدی، یا سلمان فارسی کا وظیفہ بتا رہا ہوں، اللہ شاہدی، اللہ ناصری، اللہ معی، اللہ لی۔ اللہ کے بغیر کہیں سے نظام نہیں چلے گا، ورنہ حسد قرضوں میں مبتلا کر دے گا، مرضوں میں مبتلا کر دے گا، بیماریاں کھا جائیں گی، روگ کھا جائیں گے، تکلیفیں کھا جائیں گی، زندگی کا سانس ایک دکھ ختم نہیں ہوگا، دوسرا ختم نہیں ہوگا، تیسرا، اور زندگی میں مسائل مشکلات میں ایسا الجھے گا بیچارہ، ایسا الجھے۔ ایک صاحب میرے پاس آتے ہیں، ایک وقت تھا کہ اس ملک کے نامور انسان تھے، رازداری میرا شعبہ ہے، میں کسی کا نام نہیں لے سکتا، حسد ہوا، حسد ہوا۔ پہلے تو اس کو سمجھتے رہے کہ میرے پاس حالات ہیں، کاروبار تھے، ملیں تھیں، ختم ہوتی گئے، کاروبار ختم ہوتے گئے، پھر عزت پہ حسد ہوا، پھر وقار پہ حسد ہوا، پھر شہرت پہ حسد ہوا، پھر جسم پہ حسد ہوا، اور ایک وقت یہ آیا کہ وہ زندگی کی ہر چیز ہار گیا، زندگی کی ہر چیز ٹوٹ گئی اور ہر چیز چھن گئی، کچھ باقی نہ بچا، کچھ باقی نہ بچا۔ پھرتے ہیں میر خوار، کوئی پوچھتا نہیں، پھرتے ہیں میر خوار، کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، سب کچھ چلا گیا، ہر چیز ختم کر دی، حسد کھا گیا۔ لٹنے کے بعد احساس ہوا، خیال آیا لٹنے کے بعد کہ جو تھا حسد تھا، جو تھا حسد تھا، پر اس وقت تک کشتی جل گئی تھی اور اس وقت تک زندگی ختم ہو چکی تھی۔ مجھ سے کہنے لگے، مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ میرا نام لے کے آپ پہ مجھے حسد محسوس ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، نمبر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لگے ایک دفعہ ایک سنجیدہ بے لوس، بالکل بے لوس ایک درویش نے مجھے کہا، کہنے لگے اپنے حسد کا علاج کریں ورنہ سب کو چھن جائے گا۔ کہا ان کی بات سے مجھے جھٹکا تو لگا، اور مال دولت عزت شہرت چیزوں کو ریل پیل ایسی تھی مجھے خیال ہی نہ رہا، میرے اوپر استقبال کی دنیا ایسی تھی، دولت کی دنیا ایسی تھی، اقتدار کی دنیا میرے پاس چیزیں ہے، مجھے خیال ہی نہ رہا کہ میں بس ٹھیک۔ پر جب جھٹکا لگا نا، جب لٹ گیا سب کچھ تو جینے کا خیال آیا، جھٹکا لگا، ہر چیز مجھ سے لٹ گئی، احساس ہوا کہ بس اب زہر اپنا اثر کر گیا ہے۔ پر بس زہر جب اثر کر جائے پھر قسمت والے بچتے ہیں، یہ حقیقت ہے، زہر جب اپنا اثر کر جائے پھر قسمت والے بچتے۔
मुझसे कहने लगे, मैं रात को एक फंक्शन में गया, कीमती बोस्की 2 घोड़ा बोस्की का सूट मैंने पहना हुआ था, और मैं रात को थका हुआ आया ना, मैंने कपड़े ही ना बदले, मैं लेट गया। सुबह पता नहीं कितने बजे मैं उठा, देखा तो मेरे सारा जो जिस्म है, ये सीना, इस पे ताजा खून है, बिल्कुल ताजा ताजा खून है। मैंने हाथ लगाया, ऐसे देखा तो मेरे हाथ खून से भर गए, और मैंने देखा कि मैंने जिस वक्त जिस तरफ करवट बदली थी बिस्तर में, वो हिस्सा भी खून से भरा हुआ था। अब बात जरा सुनने की है, जो आपको मैं सुनाना चाहूंगा, गौर से सुनिएगा, मेरी तरफ देखते हुए। अब देखें, खून, कपड़े ने चूसा, अंदर बुनियान थी, उसने चूसा, करवट बदली, बिस्तर ने चूसा, सब खून चूस लिया। लेकिन कहते हैं जब मैं उठा तो वो खून ऐसा था जैसे कोई चीज जबा हुई हो और अंदर से निकल रहा हो, बह नहीं रहा था, फैल रहा था। हालांकि खून तो कपड़े ने चूस लिया था, बिस्तर की चादर ने चूसा होगा, तकिए ने चूसा होगा, 2 कपड़ों ने यानी कमीज और अंदर बुनियान, इसने चूसा होगा। तो खून तो निशान होता, पर खून बजाय खुश्क हो चुका होता, नहीं हुआ था, नहीं हुआ था, खुश्क नहीं हुआ था। लगे मुझे हैरत हुई, क्या है? वो खून की कमीज लेके मेरे पास आए, इमरजेंसी आ गया, ये क्या है? मैंने जब देखी तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, बस इतना होना था कि आपको जो अमल बताया था फलां फलां चीज, अल्लाह के नाम की बरकत से हिफाजत हो गई, वरना इतना होना था कि जी हार्ट अटैक हुआ, खून की उल्टी आई और कपड़े खून से, और जनाब फलां साहब मुर्दा हालत में पाए गए। इतना होना था, ज्यादा नहीं होना था, मुर्दा हालत में पाए गए। और जब पता चला तो पता चला कि वो हसद में मुब्तला थे, महसूद थे। महसूद उस शख्स को कहते हैं जिसको हसद खा जाए, या जो हसद में मुब्तला हो और दुश्मन का हसद उसको उसके जिस्म को या बीमारी की शक्ल में, किसी तकलीफ की शक्ल में, किसी रोग की शक्ल में। कुरान ने ऐसे बयान तो नहीं किया, मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, हसद का शर होता है, हासिद का शर होता है। वो चाहे बज़ाहिर मुस्कुराहट में हो, आपको खाने खिला रहा, आपको हदिये दे रहा, आपको माल चीजें दे रहा, उसके अंदर हसद पल रहा होता है, उसके अंदर कीना पल रहा होता है, उसके अंदर बुग़्ज़ बेदार होता है, और उसके अंदर का इंतकाम खोलता है। वो चाहे बेहतरीन गुफ्तगू की शक्ल में हो या माल चीजों की शक्ल में। हाँ, और जरूरी नहीं वो सारे इंसान ही हो, और जरूरी नहीं आज के बाद हम हर बंदे को दुश्मन समझना शुरू करते हैं। कई लोग मिले, कहते लोग मुझे इस नजरों से देखते हैं, लोग मुझे ये दुश्मन है, सारे ये हैं, वो तो फिर माँ बाप को भी दुश्मन बना लेते हैं। नहीं, जिन्नात, इसलिए कुरान ने पहले मिनल जिन्नाते, पहले जिन्नात को बयान किया है, फिर इंसानों को बयान किया। हम समझते हैं कि शायद हमारे साथ इंसानों का हसद है, नहीं, पहले जिन्नात का हसद है। तेरी जिंदगी में सबसे पहले जिन्नात जो हसद करेंगे तुझे नेक मजालिस और नेक राहों से हटाएंगे, शक वसवसे बदगुमानियां डालेंगे और मुख्तलिफ शक्लों में डालेंगे, मुख्तलिफ शक्लों में डालेंगे, ताकि तुम नेक, और फिर मुंह से निकलवाएंगे तबसरों की शक्ल में, और मुंह से निकलवाएंगे मुख्तलिफ बदगुमानियों की शक्ल में, ताकि तुम इन राहों को छोड़ दे, इन रास्तों को छोड़ दे। या फिर बीमारियां, रोग, तकलीफें, मुश्किलात, मसाइल, ऐसे एक के बाद दुख दर्द अवलड़े गल पैगन, दुख दर्द अवलड़े गल पैगन, एक मुक देनी बेवल पैगन, एक खत्म नहीं होते दूसरे फिर आ जाते हैं। हसद को समझा ही कुछ नहीं हमने आज तक। मेरा अल्लाह कहता है कि सिर्फ मेरी पनाह में आओगे तो इसका इलाज है, उसके अलावा मेरी पनाह के अलावा इसका इलाज ही नहीं है दुनिया में। जो तू दुनिया की आखिरी, माइकल जैक्सन उसने कहा कि मैं मौत का हर तदबीर करूंगा, उन्होंने कहा मौत को मैंने शिकस्त देने की हर तदबीर करूंगा, और उसने मौत को शिकस्त देने की हर तदबीर की।
मौत को शिकस्त देने की हर तदबीर की और मौत को शिकस्त न दे सका, हत्ता कि फितरी जिंदगी भी ना पा सका, मुख्तसर जिंदगी में यूं चला गया। जिंदगी में जिस चीज को शिकस्त देनी है उसके आलात हैं, उसकी चीजें हैं, पर याद रखिएगा हसद को हम शिकस्त नहीं दे सकते। हसद हमारे बस में नहीं है। गाड़ी का शीशा ऊंचा करेंगे, धूल मिट्टी से, सर्दी गर्मी से बच सकेंगे, पर ये गाड़ी का ऊंचा शीशा आके आपको हसद से बचा दे, भूल है आपकी, भूल है, ये भूलना चाहिए। ये गलती है कि आपको हसद से बचा दे। इसलिए कहता हूं, अपनी कोई भी महबूब चीज देखो तो फौरन पढ़ो बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसमें ला हौला वाला नहीं है, ख्याल करना। जहां जो लफ्ज है वही लफ्ज है। बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता, कोई महबूब चीज। मैंने अपनी सारी जिंदगी अपने मुर्शिद को देखा तो यही पढ़ा। खुश होते थे मेरे मुर्शिद, दिल ही दिल में मैं ये पढ़ता था, दिल ही दिल में। और उनके ऊपर 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें मुसलसल दम करता रहता था। हामीम ला युनसरून, या हफीज या सलाम, और भी अमल। अपनी कोई महबूब चीज, गाड़ी है, सवारी है, बेटा है, बेटी है, बीवी है, कोई जिंदगी की इमारत, बिल्डिंग है, कोई भी चीज, हत्ता के यहां तक कि खैर की तरफ उठने वाले कदम, तस्बीह और तस्बीह खाने की तरफ उठने वाले कदम, उन कदमों की नियत करके भी पढ़ना। जो लम्हे गुजरे हैं उनकी नियत करके भी पढ़ना, वरना ये हासिद आपके कदम आपसे छीन लेगा, आपकी सादतें आपसे, तस्बीहां, वजीफे, जिक्र छीन लेगा और ऐसी दलदलों में, गंदगी की दलदलों में फंसाएगा। बड़े अरसे के बाद चेता और ख्याल आएगा कि मेरे साथ हुआ क्या। एक जवान मुझसे कहने लगा, हरिपुर का था, और उससे मेरी मुलाकात है 89 में, 89 में, और ये मेरी बात उसने मुझे उसी साल बताई थी। एक सफर में हम इकट्ठे हो गए। उस वक्त जवान, आज तो वो भी बूढ़ा, 89 को कितने साल हो गए? 89, 90, 90 तकरीबन 32-33 साल, अंदाजा 34। तो कहने लगा कि मैं लाड़काना के स्टेशन पे खड़ा था, सिंध लाड़काना स्टेशन पे खड़ा था। मैं जवान था। हरिपुर के ये पट्टी है, मानसेरा हरिपुर की पट्टी, पहाड़ों की खूबसूरत पट्टी, और उस वक्त उसकी उम्र कोई 27-28 साल की थी, मेरा गुमान था, मेरा ख्याल है, उससे भी शायद ज्यादा, बात इतनी थी। तो कहने लगा मैं खड़ा था, एक बूढ़ी औरत आई और मुझसे सिंधी में पूछने लगी, कौन है? तो कहा कि मैंने कहा मैं सिंधी नहीं जानता। फिर एक बंदे को ले आई, कुल्ली को ले आई उसमें जो स्टेशन, उसने कहा कि ये पूछती तो कौन है? नहीं जी मैं यहां सुबह सरहद का रहने वाला हूं। अच्छा अच्छा, क्या करता है? कहा वो मुझसे बातें करती थी ना, मेरे जिस्म में ऐसे होता था जैसे बंदे को पेचिस लगते 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 ना बंदा निढाल हो जाए, पेचिस लगे, मरोड़ लगे, और बंदा निढाल नहीं हो जाता। वक्त आता है कि जिस्म का सारा पानी निकल जाता है। कल मुझे ऐसे महसूस हो रहा था, मैं निढाल हो रहा हूं, और मैंने साथ पड़ी थी बेंच, उस पर हाथ रख लिया, और वह माई मुझसे बातें कर रही है, बूढ़ी माई थी, मुझसे बातें कर रही, और बातें करके ना मुझे ऐसे देखा और चली गई। बस उसने कहा देखा क्या था? मेरे पास देखने की 2 चीजें हैं। एक जवान मुझसे कहने लगे, एक स्टेशन पे था, एक बारात आई, बारात आई। मैं एक अल्लाह के वली की निस्बतों में बहुत अरसा रहा और दिल में नूर ही नूर था। एक बारात आई, उनकी पूरी बोगी थी, और बारात जाने लगी, और बारात में सब ने बनसवर के बारात थी। कहा कि मैं देखता रहा देखता रहा देखता रहा। उस बदनजरी का मुझ पे असर यह हुआ कि मेरे अंदर से महसूस किया कोई परिंदा था, ऐसे निकल गया। वो ईमान था। अल्लाह मुहब्बिब इलैनल ईमान वज़य्यनहु फी कुलूबिना वकर्रिह इलैनल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन वजअलना मिनस सालिहीन। वो चीज थी, वो निकल गई मेरे अंदर से, और कहा 7 साल तक फर्ज नमाजें मुझसे चली गई। पर एक वक्त वो था कि मैं तहज्जुद में नहीं छोड़ सका था। ये जो इश्क मजाजी है ना, जो कहते हैं मैंने फला जगह शादी करनी है,
मैं कहता हूं इतने बड़े घाटे का सौदा है, इतना बड़े घाटे का सौदा है, इतने बड़े घाटे का सौदा, मैं क्या बताऊं। और कहा कि अब वो वाकया मैंने ज़िमनन याद आया, या ये कहा कि वो बूढ़ी माई मुझसे बातें करती रही, देखती रही, करती रही। उसने ऐसे मुझे देखा ना, कहा ऐसे मुझे जिस्म निढाल हुआ, मैं बैठ गया और फिर मुझे 2 बंदों ने उठाया। उसी वक्त 2 बंदों ने उठाया। कहा कि वो जो मेरे साथ एक साहब खड़े थे, कहने लगे कि मुझसे कहने लगे मैं तुझे देख रहा था और मेरे जी में आ रहा था इस माई से तुझे बचा लूं, इस माई से तुझे बचा लूं। कहा कि एक वक्त था, माई कोठे वाली थी, इसके पास दुनिया आती थी और अब खत्म हो गई है। अब इसके अंदर मर्द के हुस्न का हसद है और जो हसीन नजर आता है ये अपना हसद उस पे डालती है और उसको लूट और खा के चली जाती है। रोज एक न एक बंदे के पेट भरने के लिए स्टेशन पे आती है और रोज किसी न किसी को वीरान करके जाती है, बर्बाद करके जाती है, खत्म करके जाती है। मैं अगली बात क्या कहूं, क्या वजाहतें पेश करूं। क्या पता, क्या पता कहां से वार, किस तरह का वार, कहां से वार, किस तरह का वार, कैसा वार आए और मेरा सब कुछ लुट जाए। इसलिए अपने इर्द गिर्द हिफाजत का एक निजाम हो और वो सिर्फ अर्शी निजाम है, उसका फर्शों से ताल्लुक नहीं है। जहां छुपाना भी जरूरी है। 3 चीजें ऐसी हैं जिनका छुपाना जरूरी है, एक औरत, एक रिस्क और एक दौलत। ये 3 चीजें छुपा के रखने की हैं। औरत के माने ही खुद छुपी हुई चीज के है, पोशीदा चीज के है। 3 चीजें ऐसी हैं कि मैं अक्सर कहता हूं, ये शाहपुरों में दूध लाते हैं, शाहपुरों में गोश्त, मेरी हाय निकलती है और मैं अक्सर शाहपुरों के ऊपर दम करता हूं, फिर पता नहीं शाहपर किसका है, दम मैं करता हूं। मैं पढ़ता हूं उसको देख के, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। शाहपुरों में ला रहे हैं खाने, चीजें नंगी ला रहे हैं। पहले टोकरियां होती थी, पहले थैले होते थे, या चलो कम से कम कागज के लिफाफे तो होते थे, ओला होता था, नजर नहीं पड़ते थे।